یہ امریکہ کی تاریخ کے سیاہ باب میں اس دور کی بات ہے جب سیاہ فام لوگوں کو غلام بنا کر رکھا جاتا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک سیاہ فام لڑکی منٹی کی۔ منٹی دیکھنے میں کچھ زیادہ متاثر کن نہ تھی۔ گہری سانولی رنگت، قد تقریباً 5 فٹ اور مرجھائی ہوئی جلد، اور جب وہ مسکراتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ اس کے سامنے کے 2 دانت بھی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ وہ پڑھ لکھ نہیں سکتی تھی، چھوٹے موٹے ہوٹلوں میں صفائی کر کے یا کھانے پکا کر اپنا روزگار چلاتی تھی، لیکن جیسے ہی بہار یا خزاں کا موسم آتا تو وہ اپنی ملازمت سے اچانک کہیں غائب ہو جاتی، اور جب واپس آتی تو اس کی جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ ہوتی۔ یوں وہ پھر سے کوئی کام تلاش کر کے محنت کرنے لگ جاتی۔ اس محنت نے منٹی کو جسمانی طور پر تو مضبوط بنا دیا تھا، لیکن وہ ایک دماغی مسئلے کا بھی شکار تھی۔ اسے سونے کی ایک ایسی بیماری تھی کہ وہ اچانک گفتگو کے درمیان بھی سو جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک صبح جب اس کا شوہر سو کر اٹھا تو منٹی اپنے شوہر کو بھی چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس انسان میں اتنی خامیاں ہوں اس کا احترام کون کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے امریکہ کی جنوبی ریاستوں کے وہ 300 سے زائد غلام جو منٹی کو اپنا موسیٰ مانتے تھے۔ لیکن آخر کون تھی یہ منٹی، اور وہ ہر سال اپنا کام کاج چھوڑ کر کہاں غائب ہو جاتی تھی؟ اس رات وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ اور اس کی خستہ حالت کے باوجود امریکی غلام اسے اپنا لیڈر، اپنا موسیٰ کیوں مانتے تھے؟ اور اس کے سر پر $12,000 کا انعام کیوں رکھا گیا؟ دنیا منٹی کو آج کس نام سے جانتی ہے؟ اس عورت کا نام تھا ہیریٹ ٹیوبمین۔ 1820 کو ہیریٹ میری لینڈ کے علاقے میں ایک غلام گھرانے میں پیدا ہوئی۔ اس کی عمر 13 برس تھی جب وہ ایک سٹور میں کام کرتی تھی۔ وہاں اس کے مالک نے ایک اور غلام کو مارنے کے لیے 1 کلو وزنی باٹ اٹھا کر پھینکا جو سیدھا ہیریٹ کے سر میں جا لگا۔ وہ بہت مشکل سے مرتے مرتے بچی، اور اس کی صحت کو بحال ہونے میں بھی 6 مہینے لگ گئے، لیکن وہ مکمل طور پر صحت یاب کبھی نہ ہو سکی، اور اس کی چوٹ کی وجہ سے اس کو ایسی بیماری ہو گئی کہ وہ کبھی بھی کہیں بھی سو جاتی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ منٹی کے مالک نے جب اسے بیچنے کی کوشش کی تو اسے کسی نے نہ خریدا۔ ظاہر ہے کہ ایسے انسان کو غلام کے طور پر کون خریدنا چاہے گا جو ہر وقت نیند کی آغوش میں پڑا رہتا ہو؟ منٹی اب اپنے مالک پر بوجھ بن چکی تھی، لہٰذا اس نے منٹی کو اس کے باپ کے پاس واپس بھیج دیا۔ اس کا باپ اسے لکڑیاں کاٹنے سکھانے لے جاتا، جہاں اسے آزاد سیاہ فام لوگوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کا موقع ملا۔ وہاں منٹی کی ملاقات ایک آزاد سیاہ فام آدمی سے ہوئی جس سے وہ 24 سال کی عمر میں شادی کرتی ہے، اور شادی کے بعد اپنی ماں کے نام پر اپنا نام ہیریٹ رکھتی ہے۔ لیکن جب ہیریٹ نے ایک مکمل آزادی کی زندگی کے لیے فرار ہو کر شمالی ریاستوں میں جانے کا منصوبہ بنایا تو نہ صرف اس کے شوہر نے انکار کر دیا بلکہ دھمکی دی کہ اگر ہیریٹ نے ایسا کچھ کیا تو وہ اس کو پکڑوا دے گا۔ لہذا ہیریٹ نے اکیلے ہی یہ خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا، اور شادی کے 5 سال بعد ایک رات اپنے شوہر کو سوتا ہوا چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ ہیریٹ کا کہنا تھا کہ اب اس کے سامنے 2 ہی صورتیں تھیں، یا آزادی یا موت۔ اس نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے کوئی آدمی اسے زندہ نہیں پکڑ سکے گا۔ خود آزاد ہونے کے باوجود اس نے عہد کیا کہ وہ واپس میری لینڈ جائے گی اور اپنے خاندان کو غلامی کی زنجیروں سے نکال کر لائے گی۔ 1850 میں بطور ریلوے کنڈکٹر وہ پہلی مرتبہ واپس گئی۔ وہ غلاموں کو فرار کرواتی اور ان کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں آزاد سرزمین تک لے کر آتی۔ گرمیوں اور سردیوں کے موسم میں ہیریٹ ایک گھریلو ملازمہ کی حیثیت سے کام کر کے اتنے پیسے جمع کر لیتی تھی جو جنوبی ریاستوں کی سفر کے لیے کافی ہوں۔ وہ ہر بہار اور خزاں کے دوران اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر مزید لوگ اپنے ساتھ فرار کروا کے لے آتی۔ وہ جانتی تھی کہ فرار ہونے والا کوئی بھی غلام اگر واپس چلا گیا تو اسے مار مار کر اگلوایا جائے گا کہ اس کی مدد کس نے کی۔ اس لیے وہ اپنے ساتھ چلنے والے کسی شخص کو ہار ماننے کی اجازت نہیں دیتی تھی، اور جب کوئی کمزور پڑ جاتا تو اس کے سر پر پستول رکھ کے کہتی کہ چلتے رہو یا مر جاؤ۔
हैरिएट एक हकीकी आयरन लेडी थी। 10 सालों में हैरिएट ने 19 बार वापसी का सफर किया और 300 से ज्यादा गुलामों को आजाद करवाया। और सबसे खास बात यह थी कि उसके फॉलो करने वालों में ना तो किसी की जान जाया हुई और ना ही कोई रास्ते में गुम हुआ। हैरिएट को मोसेस यानी मूसा का लक़ब दिया गया। हैरिएट की ना तो कोई तालीम थी और ना ही उसकी शक्ल सूरत कोई खास थी। उसने एक ऐसे तमद्दुन में जिंदगी गुजारी जहां स्याह फाम अमरीकियों की कोई इज्जत ना थी, लेकिन हालात के इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद वो एक गैर मामूली लीडर बनकर सामने आई। उसकी वजह बहुत ही सादा थी। लोग फितरी तौर पर ऐसे लीडर को फॉलो करते हैं जो उन्हें अपने से ज्यादा बेहतर लगता है, और ऐसे ही लीडर का वो दिल से एहतराम भी करते हैं। और यही है लीडरशिप का 7वां कानून, लॉ ऑफ रिस्पेक्ट। मैं हूं तैमूर बाजवा और आप देख रहे हैं 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप बाय जॉन मैक्सवेल। जब भी कोई ग्रुप पहली मर्तबा इकट्ठा होता है तो उस ग्रुप के जिस शख्स में लीडरशिप एबिलिटीज हों वो अलग अलग सिमत में अपना रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे तक सब लोग उस ग्रुप के सबसे मजबूत लीडर की तरफ अपनी डायरेक्शंस कर लेते हैं, क्योंकि लोग फितरी तौर पर उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा बेहतर समझते हैं। वक्त के साथ साथ ग्रुप में शामिल सब लोग एक होकर मजबूत तरीन लीडर को फॉलो और रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जिनकी वजह से लोग किसी की रिस्पेक्ट करते हैं और एज अ लीडर उसको फॉलो करते हैं। नंबर 1, नेचुरल एबिलिटी ऑफ लीडरशिप। पहली और सबसे अहम चीज है लीडरशिप की फितरी सलाहियत। कुछ लोगों में लीडरशिप की नेचुरल एबिलिटी ज्यादा होती है और कुछ लोगों में कम। अगर आपकी लीडरशिप की नेचुरल एबिलिटी हो तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, लेकिन लीडरशिप की नेचुरल एबिलिटी रखने वालों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो अपनी नेचुरल एबिलिटी पर ही तकिया कर लेते हैं और लीडरशिप के बाकी फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं। नंबर 2, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। दूसरों का एहतराम एक पैटर्न के तहत अचीव होता है। जब लोग बहैसियत इंसान आपकी रिस्पेक्ट करते हैं तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, और जब वो एक दोस्त की हैसियत से आपका एहतराम करते हैं तो वो आपसे मोहब्बत करते हैं, और जब वो लीडर की हैसियत से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं तो वो आपको फॉलो करते हैं। अगर आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते रहेंगे तो वो आपको फॉलो करते रहेंगे। नंबर 3 इज करेज। एक क्वालिटी जिसने सबको हैरिएट ट्यूबमैन का एहतराम करने पर मजबूर कर दिया था वो थी हैरिएट की हिम्मत। वो पुरअज़म थी कि वो अपने और दूसरे गुलामों की जिंदगी को आज़ाद करने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देगी। हमें तारीख में किसी ऐसे अजीम लीडर की मिसाल नहीं मिलती जो बेहौसला हो। कोई भी औरत प्लास्टिक सर्जरी करवा के आयरन लेडी नहीं बन सकती। लीडर बनने के लिए शक्ल की खूबसूरती नहीं, हक के लिए खड़े होने की हिम्मत मैटर करती है। एक लीडर को लीडर कहलाने का कोई हक नहीं अगर वो मुश्किल वक्त में अकेला खड़े रहने के लिए तैयार ना हो। फैक्टर नंबर 4 इज सक्सेस। आपने कभी सोचा है कि लोग अपनी फेवरेट सेलिब्रिटीज या क्रिकेटर्स की जिंदगियों में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं? क्योंकि लोग उनकी कामयाबियों से मोहब्बत करते हैं और उनकी जीत का एहतराम करते हैं। नंबर 5, लॉयल्टी। आज के इस खुदगर्जी के दौर में किसी से वफा करना एक इंतहाई अनमोल मोती है। अच्छे वक्तों में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन असल लीडर वो होता है जो अपने किसी फॉलोअर के बुरे वक्त में उसकी मदद करे। 2020 में जब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ तो फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से बहुत सी कंपनियों ने अपने मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया, लेकिन कुछ इदारे ऐसे भी थे जिन्होंने इस मुश्किल वक्त को देखते हुए अपने मुलाजमीन को 2-2 माह की सैलरीज एक्स्ट्रा दे दी। अब आप खुद सोचें कि ऐसे लीडर को छोड़कर कोई कहीं और क्यों जाना चाहेगा। नंबर 6, वैल्यू एडिड फॉर अदर्स। इज्जत कमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। इस बारे में हम लीडरशिप के 5वें कानून लॉ ऑफ एडिशन में तफसीलन बात कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए अब ये देखते हैं कि हम अपनी रिस्पेक्ट के लेवल को कैसे नाप सकते हैं। लीडरशिप का एक पैमाना यह है कि उन लोगों का कैलिबर देखा जाए जो आपको फॉलो करते हैं। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में देखा जाता है कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं, लेकिन प्रोफेशनल दुनिया में यह देखा जाता है कि फॉलो करने वालों का लेवल क्या है।
अगर कोई एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर हो जिसकी वीडियो चंद 100 लोग भी मुश्किल से देखते हों, लेकिन ज़्यादातर देखने वाले किसी कंपनी के सीईओ या हाई लेवल प्रोफेशनल्स हो, तो वो 100 व्यूज़ वाला कंटेंट ऐसे मिलियन व्यूज़ वाले कंटेंट से बेहतर है जिसे देखने वालों का लेवल बस टाइम पास हो। लॉ ऑफ रिस्पेक्ट का कंक्लूजन ये है कि जिन लोगों को आप अपना फॉलोअर बनाना चाहते हैं, अगर वो आपको फॉलो करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मुमकिन है कि आप अपने लीडरशिप लेवल से ऊपर के लेवल वालों को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं। उन्हें तभी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है जब आप लीडरशिप के कवानीन को अपने ऊपर अप्लाई करके अपनी लीडरशिप लीड का लेवल उनसे ऊपर कर लें। चलिए अब ये देखते हैं कि लॉ ऑफ रिस्पेक्ट को हम अपनी जिंदगियों में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। किसी ऐसी सिचुएशन को याद करें जब आपने अपने एम्प्लॉयज या फॉलोअर्स को कुछ ऐसा करने का कहा हो जिसमें रूटीन के काम से कुछ अलग करना हो और उन्हें एक्स्ट्रा माइल एफर्ट करना हो, तो उनका रिस्पॉन्स क्या होता है? क्या वो आपके एक इशारे पर लबैक कहते हैं या फिर वो एक्सक्यूजेस देते हैं? रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए जिन 6 क्वालिटीज़ का हमने जिक्र किया है, उन सब में एक एक करके खुद को 1 से 10 तक रेटिंग दें और हर एक क्वालिटी के आगे अपना 1 महीने का एक्शन प्लान लिखें कि उस क्वालिटी में अपना लेवल बढ़ाने के लिए आप क्या एक्शंस लेंगे। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी एक हदीस मुबारका का जिक्र किया, वही यहाँ भी अप्लाई होता है। तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो। यानी ये वैल्यूएट करें कि आपके सबसे करीबी लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं, क्योंकि बाहर के लोग तो मुमकिन है कि आपके ओहदे या दिखावे की वजह से आपको रिस्पेक्ट देते हों। लिहाजा ये देखने की ज़रूरत है कि आपके अपने आप के बारे में क्या तासुर रखते हैं और फिर उनकी नज़र में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए अपनी उन खामियों और आदात को दूर करें जिसकी वजह से आपके करीबी लोग आपको नापसंद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप बाय जॉन मैक्सवेल की मुकम्मल सीरीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल थिंक बिग को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ फरमाए। थिंक बिग की तरफ से तैमूर बाजवा को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।